Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I discussed about the Fulkerson's rule, then various types of network models in which there are two types, activity on arrow and activity on node, that was AOA and AO, and activity on node. Apart from that, I discussed about the network diagram, and in network diagram how to construct the network diagram, the procedure of it, steps, and I also took one example of it. And in today's lecture, I will take further more examples to construct network diagram, because it is very important and basics requirement in CPM and PERT method. CPM is nothing but the critical path method, while PERT is project evaluation and review technique. So let us start with our today's example. So draw the network diagram which has following activities and precedence relationship as specified in this table. Here the activity and its relation with the predecessor. Suppose predecessor means the activity which is done earlier. Suppose here it is A activity, and dash means there is no activity before A, which means here there is no activity before A. And what does this indicate? That the C activity, the predecessor activity, is A. The predecessor activity before C, the A must complete, which means the A becomes the predecessor as here mentioned. So after completion of A, only and only then activity C can start. So this is the basic requirement, and here the C is predecessor for some another activity, which means E. So here the E activity will only start when the C activity completes. Similarly, using this predecessor and successor activity, we will construct the network diagram for the problem. Now let us construct the network diagram. So first here on A there is no predecessor activity, which means the A and B, both the activity here there is A and B, both of activity don't have any predecessor activity. So they will start from one point. So both of them will be starting from one number, from one will be A activity, and we will specify the node as 2 number, and another will be the B activity, and we will specify this with number 3. Now what is the next activity? Next is the here the A becomes predecessor for C, which means after completion of A, here there will be activity number C. So from 2 we will write 2 to C. Here 3 we already given number, so here there will be number 4. This will be our next activity. After that, here the B is predecessor of D activity, so here there will be D at here. We will draw in this way. From 3 there will be D activity. After B activity D completes, so we will specify with 5 number. Next we have completed the D activity. After completion of D activity, the C, there are 2 एक्टिविटी स्टार्टिंग फ्रॉम C. सो जो C है उसमें से 2 एरोज आएंगे,
क्योंकि सी में से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सी के बाद ई और एफ, ठीक है। सेम वे यहाँ पे ये जो डी है, डी जो एक्टिविटी है उसमें से 2 एक्टिविटी स्टार्ट होगी अगेन, एक है जी और एक है एच, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ई और एफ। सबसे पहले यहाँ पे ई एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एफ एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों को हम एरो के नंबर देंगे। 5 के बाद इसको नंबर देंगे 6 और इसको नंबर देंगे 7 नंबर, ठीक है। ये जो है सी के बाद आई ई एक्टिविटी, सी के ख़त्म होने के बाद ई स्टार्ट हुई, और यहाँ पे सी के ख़त्म होने के बाद एफ एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर आता है डी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक जी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद जी के बाद एच एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एफ और जी, आप आगे देखो, आप एफ एक्टिविटी यानी कि ये वाली एक्टिविटी एफ, और जो भी हम जी लेंगे उसमें से एक और एक्टिविटी बन रही है, दैट इज जे एक्टिविटी बन रही है। मतलब ये दोनों पॉइंट जब कनेक्ट होंगे तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जी मतलब एफ और जी दोनों कंबाइन होके एक और नई एक्टिविटी बनाएंगे, दैट विल बी जे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन सो यू कैन स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कि ये जो एफ और जी है वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि ये यहाँ पे 5 से 7 कौन सी एक्टिविटी आएगी, दैट विल बी एक्टिविटी जी, एंड फ्रॉम जी देर विल बी एक्टिविटी नंबर जे, क्योंकि एफ और जो जी है वो दोनों, ये एफ और जी दोनों कंबाइन होके कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, जे। सो एफ और जी कंप्लीट होने के बाद ही जे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डी के बाद जी एक्टिविटी, डी के बाद जी एक्टिविटी, और अभी कौन सा रह गया, डी के बाद एच एक्टिविटी रह गया। तो डी के बाद एच एक्टिविटी है वो हम ऐसे ही लिखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि वहाँ से तो कोई आगे एक्टिविटी है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर देंगे, पहले यहाँ पे दे देते हैं नंबर, इसका नोड 8 नंबर और इसका नोड नंबर 9, टॉप से बॉटम तक नोड देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो 6 नंबर एक्टिविटी है ई और एफ, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करके कौन सी एक्टिविटी बन रही है, आई एक्टिविटी। सो ई के बाद यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए, आई एक्टिविटी आनी चाहिए, और एफ के बाद भी कौन सी आनी चाहिए, आई एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब आई का स्टार्टिंग पॉइंट 6, पर यहाँ पर क्या है कि ये तो यहाँ पे कनेक्शन बन रही ना रहा, तो यहाँ पे अगर हम डमी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड कर दे, यहाँ पे इन बिटवीन अगर डमी एक्टिविटी D1 ऐड कर दे तो कंप्लीट हो जाएगा कि F कंप्लीट होने के बाद F कहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे। उसके बाद डमी एक्टिविटी की वजह से ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा आई एक्टिविटी के, और आई का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ई भी आ जाएगा। तो ई और एफ कंबाइन होके आई एक्टिविटी बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक डमी एक्टिविटी आएगी, यहाँ पे डमी एक्टिविटी D1 आएगी, ठीक है। और ये ई एफ जो होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगे फॉर द आई एक्टिविटी। सो यहाँ पे 6 से 8 नंबर है वो बन जाएगी हमारी आई एक्टिविटी, और आई और जे लास्ट में कंबाइन होके कौन सी एक्टिविटी बनाएंगे, आई और जे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, जो आई है वो तो यहाँ पे आगे कोई एक्टिविटी नहीं बना रहा, लेकिन जो जे और एच है, यानी कि ए एच है और ये जे है, वो दोनों कंबाइन होके कौन सी एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे के एक्टिविटी आएगा। लेकिन जब के का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जे तो आ गया लेकिन एच नहीं आया, तो इन दोनों को डमी एक्टिविटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक और डमी एक्टिविटी आएगी। सो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे डमी एक्टिविटी नंबर D2, ठीक है।
और जो ये जे और एच कंबाइन होके कौन सी एक्टिविटी लास्ट वाली बनाएंगे, दैट विल बी एक्टिविटी के। एंड यहाँ पे आएगा नंबर, लास्ट नंबर जो बचा दैट इज अवर 10 नंबर। ठीक है, सो ये हो गया पूरा कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे। सो हियर इट इज़ द सॉल्यूशन। इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अभी इस एग्जांपल में क्या है कि ये जो नेटवर्क डायग्राम है, डायरेक्ट टेबल जो डेटा है गिवन रिलेशन, वो टेबल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो इस तरीके से दिया हुआ है कि लेस देन और इक्वल टू इस टाइप का है। तो हमें सबसे पहले इसका टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। व्हेन दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज गिवन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इन टेबुलर फॉर्म and along with the preceding activity. Here it is given that the A is less than B, C, D and G. This means that the activity B, C, D and G can only started after completion of activity A. A जब complete होगी तभी वो activity start होगी. So A is the predecessor activity for B, C and D and G. जो A क्या बन जाएगी, उन सब के लिए predecessor activity बन जाएगी, मतलब वो complete होगी तभी वो activity start होगी, बी सी डी और जी। सिमिलर इंटरप्रिटेशन कैन बी डन फॉर द अदर सिंबल। सो वी कैन हैव इन दिस वे वी विल गेट इन द टेबुलर फॉर्म द प्रीडेसेसर्स एक्टिविटीज। मतलब ये जो है ये ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब सी और डी कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर ये आई एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब एच जे और एफ कंप्लीट होगी, एफ जी एच सॉरी। एंड देन बी एच कब स्टार्ट होगी, एच स्टार्ट होगी जब बी कंप्लीट होगी, और एफ कब स्टार्ट होगी, जब बी और ई कंप्लीट हो जाएगी। और जो जी है उसके लिए तो ए कंप्लीट होना ज़रूरी है, डी सी बी के लिए भी ए कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इन दिस वे विल प्रिपेयर द कंप्लीट प्रीडेसेसर एंड एक्टिविटी टेबल। फ्रॉम दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। सो लेट अस ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर सेम। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक्टिविटी है ये ए के लिए कोई आगे प्रीडेसेसर एक्टिविटी नहीं है, तो ए कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे से ही स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट से। सो यहाँ पे 1 नंबर होगा, 1 से 2 क्या होगा हमारा नंबर, 1 से 2 नंबर, दैट विल बी अवर एक्टिविटी ए। और जो ए के बाद कितनी 4 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक बी, एक सी, एक डी और एक जी। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे सपोज़ ये है, यहाँ पे हम ले लेते हैं बी, उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे एक सी और एक और लास्ट में ले लेते हैं, दैट विल बी आवर डी एक्टिविटी, और एक और बाकी रहती है दैट विल बी आवर जी एक्टिविटी। और जो नोड का नंबर देना स्टार्ट करे तो नोड का नंबर हमेशा टॉप से बॉटम तक दे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 3, उसके बाद 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे नंबर 6। ठीक है, और अभी जो बी के बाद स्टार्ट होने वाली एक्टिविटी कौन सी है, एच नंबर की एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एच नंबर की एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो उसको हम पहले स्टार्ट कर देते हैं, एच नंबर की एक्टिविटी। फिर आगे क्या है यहाँ पे कि ये जो 6 नंबर है, यानी कि डी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जो सी और डी के बाद ई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे सी और डी को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डमी एक्टिविटी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे ई एक्टिविटी आएगी। सो ये हो गई हमारी ई एक्टिविटी। 6 के बाद यहाँ पे सपोज 7 नंबर दे दिया, और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से ये डमी एक्टिविटी ऐड कर दी। ठीक है, 5 में से 6, और यहाँ पे ये 7 नंबर, और ये 4 के बाद जो है यहाँ पे बी और ई भी कंबाइन हो रही है। ठीक है, बी और ई, यानी ये ई और बी कंबाइन होगी तो यहाँ पे भी एक डमी एक्टिविटी आएगी। ठीक है,
तो वहाँ से एक और एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और जो जी है वो कंबाइन हो रही है, मतलब कितनी एक्टिविटीज़ कंबाइन हो रही है, एक एफ एक जी, और यहाँ पे ये जो है एफ, वो एफ किसके बाद है, बी और ई के बाद है, तो यहाँ पे आएगी एफ। और आप देख सकते हो कि ये जो है जी, एच और एफ, इन तीनों को कंबाइन करके कौन सी एक्टिविटी बन रही है, आई एक्टिविटी बन रही है। लेकिन यहाँ पे जी और एच कंबाइन कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे एक और डमी एक्टिविटी आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 डमी एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे नंबर देते देते हैं, पहले 8 नंबर और यहाँ पे लास्ट में 9 नंबर। सो इन दिस वे वी क्रिएट द नेटवर्क डायग्राम फॉर दिस। This is our second number example. Let us take one more example. Draw the network diagram relation for given activities. यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी ए और बी, उनके आगे प्रीडेसेसर एक्टिविटी कोई भी नहीं है, सो दोनों की दोनों कहाँ से स्टार्ट होगी, जो भी हमारा 1 पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे लेंगे 1 और 1 में से ही स्टार्ट होगी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। यहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट 2 एक्टिविटी का एंडिंग नोड क्या है, 2 नंबर, और बी एक्टिविटी का एंडिंग नोड 3, और इसका जो एंडिंग नोड है वो अगली एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड बन जाएगा, ठीक है। तो ए एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो मतलब ए कंप्लीट होने के बाद जो सी स्टार्ट होगी, तो सी का स्टार्टिंग नोड कौन सा बन जाएगा, 2 नंबर, और सी का एंडिंग नोड नंबर 4, ठीक है। और जो भी बी है, बी के बाद 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो, एक डी और एक ई। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी डी एक्टिविटी, उसका नंबर देंगे 5, और एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ अवर ई एक्टिविटी, और उसका नंबर देंगे 6, ठीक है। उसके बाद जो सी और डी इन दोनों के बाद कौन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सी के बाद एफ एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और जो डी है उसके बाद जी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जी, सो इन सब का ये कॉमन नोड बन जाएगा 7 नंबर, और यहाँ पे ये इसको हम कनेक्ट करेंगे डमी एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ई एफ जी है, यानी कि ई एफ और जी, ये सारी कंबाइन होके नई एक्टिविटी बनाएंगे, दैट विल बी आवर H activity. From 7 there will be H activity, or that will be the our ending node. In this way we prepare the network diagram. और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, इसको हम D1, आगे मेंशन नहीं किया था तो वैसे हम मेंशन कर सकते हैं D1 D2 D3, जितनी भी डमी एक्टिविटीज़ है उनको, ठीक है। इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि हमको AON एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम क्रिएट करना है। आगे वाले जो डायग्राम्स थे वो सारे कौन से थे, एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम उसमें क्या करते थे कि जो भी प्रॉब्लम था उसमें स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए S ले लेंगे, ठीक है। तो एस स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक ए एक्टिविटी, और दूसरी जो स्टार्ट हो रही है दैट विल बी आवर बी एक्टिविटी। रिमेंबर, जो एक्टिविटी ऑन नोड मेथड है उसमें हम एक्टिविटी जो नोड यानी कि जो सर्कल है उसमें मेंशन करेंगे, ना कि एरो के ऊपर, ठीक है। एरो के ऊपर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद बी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सॉरी ए के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, आप प्रीडेसेसर में देख सकते हो कि ए के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट विल बी आवर सी एक्टिविटी। और जो बी के बाद 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक यहाँ पे एक
डी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और एक ई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। रिमेंबर, यहाँ पे एरो पे एक्टिविटी नहीं इंडिकेट करनी है, सिर्फ और सिर्फ नोड पे इंडिकेट करनी है। फिर सी के बाद एफ और डी के बाद जी एक्टिविटी, सी के बाद एफ एक्टिविटी और डी के बाद जी एक्टिविटी, और इन सबको कंबाइन करके हमारी एंड एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट था वैसे ही यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी विल क्रिएट एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। ठीक है, सो एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम ऐसे क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी है वो एरो के ऊपर नहीं मेंशन करनी है, सब नोड के ऊपर मेंशन करनी है, और इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेंशन करने हैं। तो ये हो गया एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम। And let us take one last example for today. Listed in the table are the activity and sequences necessary for maintenance job on the heat exchanger in a refinery. Draw the network diagram for the project. और इसके लिए हमको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। जो ए एक्टिविटी है उसके प्रीडेसेसर एक्टिविटी कोई नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। लेट मी जूम दिस आउट, अगर थोड़ा जूम हो सके तो बेटर रहेगा। नहीं, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ए है, ए के पीछे कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो सबसे पहले 1 नंबर आएगा, और 1 के बाद यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, उसके बाद 2, जो ए के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जो सेकंड रो में दी मेंशन की है, दैट इज़ अवर बी एक्टिविटी, और बी स्टार्ट हो रही है, दैट विल बी अवर नंबर 3। बी के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सी एक्टिविटी, दैट विल बी नंबर 4, और यहाँ पे सी। फिर बी के बाद एक और एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट विल बी डी एक्टिविटी, यहाँ पे है डी एक्टिविटी, उसका नंबर बाद में देंगे। ठीक है, मैं मेंशन करूँगा क्यों, क्योंकि जो सी के बाद एक और एक्टिविटी है, फिर एफ के बाद है। ठीक है, फिर ई के बाद कौन सी एक्टिविटी है, बी के बाद एक और एक्टिविटी है, दैट विल बी अवर ई एक्टिविटी। ठीक है, फिर जो 4 नंबर है सी, सी के बाद यहाँ पे 2 एक्टिविटी है, एक है एफ और एक है जी एक्टिविटी। 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 4 नंबर के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल में सी के बाद 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक एफ है और एक जी, और जो एफ और जी है ये दोनों कंबाइन होके एक और एक्टिविटी बना रहे हैं, दैट विल बी अवर एच। सो यहाँ पे ये जो है ये होगा यहाँ पे 4 के बाद 5 नंबर, यहाँ पे ये 6 नंबर, और यहाँ पे आएगी एक डमी एक्टिविटी D1, और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो जो 4 के बाद 5 नंबर है, यहाँ पे जो F और G है वो कंबाइन होकर कौन सी एक्टिविटी बनाएंगे, दैट विल बी अवर H एक्टिविटी। और जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो कि D, E और H है वो कंबाइन होके, यानी कि H, D और E ये कंबाइन होके I एक्टिविटी बना रहे हैं, यानी कि यहाँ के बाद यहाँ पे I एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे I एक्टिविटी मेंशन करने के लिए ये वाला एरो मुझे थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी इरेज इट एंड एक्सटेंड इट। सो ये वाला एरो निकाल दिया यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे, और 6 के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, दैट विल बी अवर 7 नंबर पॉइंट, और इसको हमने एक्सटेंड किया जो डी एक्टिविटी वाला था, क्योंकि जो तीनों एक्टिविटी है डी, एच और ई
ठीक है। और यहाँ पे ये 7 नंबर का नोड है वो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर डमी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो डमी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम एक्टिविटी स्टार्ट और एंड नहीं हो सकती, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकते, वो हमने आगे पढ़ा था। इसीलिए जो ये 7 नंबर है वो यहाँ पे 8 के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और डमी एक्टिविटी आएगी, दैट विल बी अवर D2। ये ओनली डी जो है वो डमी एक्टिविटी नहीं है, जो 1 2 3 वाले हैं वही डमी एक्टिविटी है। और इसके बाद जो I8 के बाद आएगी I एक्टिविटी, दैट विल बी अवर 9 नंबर। और उसके बाद लास्ट जो है दैट विल बी अवर 10 नंबर, और जो 10th एक्टिविटी है वो हमारी J एक्टिविटी है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम। So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.